Welcome students. So we were doing chapter motion and next topic is to drive equations of motion by graphical method. How can we drive equations of motion by graphical method? How can this be possible? So when an object moves in a straight line with a uniform acceleration, then it's possible to relate its acceleration, velocity, distance with respect to time. जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो इट्स पॉसिबल कि हम उसके रिलेशंस को क्या कर सकें, रिलेट कर सकें. सो देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. कौन कौन सी? फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड थर्ड इज 2as is equals to v square minus u square. These are the three equations of motion. Now what we have to do is we have to derive it कि ये three equations आई कहाँ से. अब क्या करेंगे हम, एक vt ग्राफ को कंसीडर करते हैं. कंसीडर अ vt ग्राफ. vt मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हमने एक क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर किया. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. We have to take time always along x-axis. So this is time and this is velocity. It starts from 0. Now, if a body has some initial velocity at A, and you know that initial velocity is denoted by u. Now, if a body has initial velocity u, and that body starts from point A, and it travels along a straight line with uniform acceleration. बॉडी ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया? फ्रॉम पॉइंट ए विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ. आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस, लेट्स सपोज कि वो पोजीशन कहाँ पे पहुंची? बी पोजीशन पे. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं लिखते क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, राइट? ताकि वो क्लियर बने, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा. हाँ जी. नाउ द बॉडी चेंजेस. Now the body changes uniformly, है ना, उसकी velocity change हो रही है uniformly. Now velocity changes uniformly with respect to time. So after time t, position is at B. So its final velocity becomes v. A body starts from initial velocity u, and after reaching at point B, after time t, its velocity becomes v. What is v? V is final velocity. Now what is this BC? Let this BC is perpendicular at C. कि BC क्या है? एक perpendicular है C पोजीशन पे. And draw AD parallel to OC. एक हमारे पास AD है जो किसके पैरेलल है? OC के. OC. Now again draw a perpendicular from B at E. हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. कौन सा? बी ई. किस पोजीशन से? बी पोजीशन से हमने स्टार्ट किया. क्या किया हमने? परपेंडिकुलर एक और ड्रॉ कर लिया. अब हमने क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करना है. फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या किया, एक इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी इज v. व्हाट अबाउट ओसी? ओसी इज अ टाइम. सो दिस इज t. टाइम क्या है हमारे पास? t. या इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. तो अगर हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है तो आप देख सकते हो कि ये जो बी सी है ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी. सो वी कैन टेक दैट बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट? बी सी जो क्या है? एक फाइनल वेलोसिटी. ये किसके इक्वल है? बी डी प्लस डी सी. बी डी प्लस डी सी. बी सी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, दैट इज वी. व्हाट इज बी डी? वी डोंट नो. बी डी. What about DC? DC as you can see that DC is parallel to OA. तो यहाँ पे क्या मैं OA लिख सकती हूँ क्योंकि DC is parallel to OA. तो BD as it is. What about OA? OA is the initial velocity. So write U. This is V. BD comes out to be V minus U. Let this equation is equation number 1. Again, आपको ये पता है कि what is acceleration? Acceleration क्या होता है? Acceleration is rate of change of velocity by time taken. कि change in velocity, कि velocity में कितना change आया? By time. With time, velocity में कितना change आया? And what is change in velocity? It is final minus initial. Final क्या है? BC. Initial क्या है? OA, which is parallel to DC. So final minus initial कितना रहेगा हमारे पास? BD.
बी डी, क्योंकि ये हमारे पास इतना ही रह गया ना, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, बी डी बच गया, जो क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टी, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए. Now BD is equals to AT. Let this equation is equation number 2. Now put equation number 2 in equation number 1. Equation number 2 को हम किस में put करेंगे? In equation number 1. Now put equation second in equation number 1. अगर हम first equation में इसको put करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? BD is equals to V minus U, और BD की वैल्यू क्या है? AT. So AT is equals to V minus U और V is equals to U plus AT. So this is our first equation of motion जो हमने अभी क्या किया? ड्राइव किया. ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. व्हाट अबाउट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है? डिस्टेंस S. डिस्टेंस को हम S के साथ डिनोट करते हैं. डिस्टेंस क्या है? S. तो हम डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस S इज, लेट्स सपोज अ बॉडी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस S. ठीक, बॉडी ट्रैवल कर रही है कितना? डिस्टेंस S, जो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया एनक्लोज्ड इन दिस VT ग्राफ, कि इस VT ग्राफ में कितना एरिया आ रहा है. सो डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड. कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एरिया एनक्लोज्ड इन दिस VT ग्राफ, दैट इज OABC. आप देख सकते हो ये जो एरिया है, you can see that there are two figures. First is triangle, second is rectangle. जो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB और किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OA या एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कौन सी रेक्टेंगल? OADC. OADC. And you know about area of triangle ADB. क्या होता है एरिया ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. हाफ इंटू बेस, दिस इज ट्राइंगल का बेस कौन सा है? AD और एल्टीट्यूड BD. ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल. एंड यू नो अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ. OC इंटू OA. दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ. हाँ जी, हाफ इंटू व्हाट इज AD? AD इज पैरेलल टू OC एंड वी नो दैट OC इज इक्वल्स टू T. सो AD भी क्या होगा हमारे पास? T. क्यों? क्योंकि वो किसके पैरेलल है? OC के. एंड OC इज इक्वल्स टू T विच इज टाइम. इंटू व्हाट इज BD? BD. एंड वी नो व्हाट इज BD? वी डोंट नो अबाउट BD. प्लस OC. व्हाट इज OC? दिस इज टाइम. इंटू OA. दिस इज U. हाँ जी, हमें BD की वैल्यू नहीं पता. बाय यूजिंग इक्वेशन 2 वी नो दैट BC इज इक्वल्स टू AT. तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू प्लस UT. कहाँ से आया? बिकॉज यूज इक्वेशन सेकेंड, जो हमने ये इक्वेशन सेकेंड की है, BD इज इक्वल्स टू AT. इसको हमने यूज कहाँ किया? इस BD की वैल्यू को पुट करने के लिए. दिस बिकम्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू S. ये किसके इक्वल है हमारे पास? S के इक्वल, राइट. ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ये हमारे पास क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो क्या होगी हमारे पास? ड्राइव होगी. अब फर्स्ट इक्वेशन भी ड्राइव होगी, सेकेंड इक्वेशन भी ड्राइव होगी. कौन सी बच गई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसमें अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है? S. व्हाट इज S? डिस्टेंस. बट आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम नहीं है ना? टाइम यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. और मैंने आपको बताया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि हम डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया एनक्लोज्ड इन दिस VT ग्राफ, कि जितना एरिया इस VT ग्राफ में बन रहा है वो किसके इक्वल है? डिस्टेंस के. सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं? कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस किसके इक्वल है? एरिया एनक्लोज्ड इन दिस VT ग्राफ OABC. और आप देख सकते हो कि OABC क्या है? एक ट्रेपीजियम. ठीक है, तो ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि ये ट्रेपीजियम की तरह दिख रहा है, राइट. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC. What is the area of trapezium? It is sum of parallel sides into height by 2. Write down sum of
two parallel sides into height by 2 हाँ जी, इस डायग्राम में से अगर आप ध्यान से देखोगे कौन सी टू लाइंस पैरेलल हैं, ये टू लाइंस पैरेलल हैं, ये दो है ना, OA प्लस BC। कौन सी सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ये दो पैरेलल हैं तो OA प्लस BC इनटू हाइट। अगर ये टू पैरेलल साइड्स हैं तो हाइट कौन सी है, OC बाय 2। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं S के साथ, राइट। हाँ जी, अब S is equals to what is OA? This is initial velocity which is equals to U. And what about BC? This is final velocity which is equals to V, right? And what about OC? OC is T by 2. हाँ जी, आप इस इक्वेशन में देख सकते हो कि यहाँ पे हम टाइम की बात नहीं कर रहे। अगर टाइम की बात यहाँ पे नहीं करें then we have to eliminate time T. Now कैसे eliminate करेंगे, U plus V into T by 2. We know use equation first, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने अभी ड्राइव किया वो क्या है, V is equals to, mark this equation number 3rd and mark this equation number 4. V is equals to U plus AT. यहाँ से हम T की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। T is V minus U by A. This is equation number 5. Now put 5 in फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू एलिमिनेट T को हमने एलिमिनेट करना है। कैसे, उसकी वैल्यू को पुट कर दो किस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में, V माइनस U बाई ये है 2, दिस इज A। हाँ जी, A प्लस B, A माइनस B, इसका फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। वाई, बिकॉज A प्लस B एंड A माइनस B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो 2A चला गया इधर, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। जो हमने अभी क्या की है, हमने एक VT ग्राफ ली। VT क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसमें से हमने ये 3 इक्वेशंस को ड्राइव किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टू ड्राइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हाँ जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, वेलोसिटी अगर चेंज हो, व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देन वी सेड दैट इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी चेंज हो, कैसे चेंज होगी, या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस देन वी टेल दैट इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या चीज एक्सेलरेटेड मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी, है ना। हाँ जी, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, वो 2 वे से होती है। फर्स्ट वे क्या होता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तब भी हम बोलेंगे कि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी में चेंज 2 वे से आता है। फर्स्ट इज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, सेकंड इज बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि हम मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर लें और डायरेक्शन को चेंज कर लें, तब भी हम बोलेंगे कि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी? एनी एग्जांपल? यस, let's suppose there is a rectangular track, एक rectangular हमारे पास track है OABC. Now an athlete starts running from this point A. After reaching at point B, his velocity is uniform, his velocity is constant. उसकी velocity constant है, but after reaching at point B, he has to change his direction. उसको अपनी direction को change करना होगा, क्योंकि चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड इज सेम बट देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, दैट मीन्स एट पॉइंट बी देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगेन एट पॉइंट सी हिज वेलोसिटी इज चेंजिंग, क्योंकि उसको क्या चेंज करना है, हिज डायरेक्शन। एट पॉइंट डी अगेन हिज डायरेक्शन चेंजेस, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन वेलोसिटी।
तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी कितनी बार आया, 4 टाइम्स, क्योंकि देयर आर 4 कॉर्नर्स, सो 4 कॉर्नर से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, सो चेंज इन वेलोसिटी भी कितनी बार आई, 4 टाइम्स। अगर हम एक हेक्सागोनल ट्रैक ले लें, अगर एक एथलीट ही स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए, आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी, लेट्स सपोज ही रन्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बट आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी हिज डायरेक्शन चेंजेस, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगी दैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज आ गया। हाँ जी, जब वो सी से डी पोजीशन तक जाएगा, अगेन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों, बिकॉज देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। फ्रॉम डी टू ई अगेन वेलोसिटी चेंजेस बाय चेंजिंग इज डायरेक्शन। फ्रॉम ई टू एफ अगेन डायरेक्शन चेंजेस, दैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज आया, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। तो क्या ऐसी हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट इट्स डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग? यस, देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक जिसमें क्या होता है, एवरी टाइम देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, है ना, एवरी टाइम देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, हर टाइम क्या हो रहा है, हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर एथलीट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो अगेन एवरी टाइम बाय कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड से सेम रखते हैं, बट एवरी टाइम हिज डायरेक्शन चेंजेस, एवरी टाइम हिज डायरेक्शन चेंजेस। अगर उसकी डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। So what is uniform circular motion? Uniform circular motion is when a body moves or an object moves in a circular path. When an object moves in a circular path with a uniform velocity or speed, then this is known as uniform circular motion. कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, बट उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम, बट एवरी टाइम इट्स डायरेक्शन चेंजेस, दैट मीन्स ये क्या है, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें क्या है, देयर इज सेम velocity have same magnitude but direction changes. So this is all about uniform circular motion.